सो आपको क्या लगता है अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री हो गया तो बस वो अब आपकी स्किन के लिए बेस्ट फ्रेंड हो गया? मैन्युफैक्चरर्स नो इट, उनको पता है कि उन्होंने वो डाल रखा है, बट पब्लिक को नहीं पता तो वो डाले जा रहे हैं। सिलिकॉन से भी ज्यादा वर्स किस लिए है? बिकॉज ये सिलिकॉन से छोटे हैं, माइक्रो हैं। सिलिकॉन तो स्किन के ऊपर रह के तबाही मचा रहा है, ये तो पोर से अंदर घुस के तबाही मचा रहे हैं। Silicon, the ingredient everyone rushed to cancel. It was blamed for clogging pores, dulling your skin, for that matter, even making your products feel heavy. But what if we told you there's something more alarming and concerning that no one's talking about? An ingredient so small that you can't even see, so common that you must be using it right now, and so sneaky it could be silently damaging your skin for a long term. So, welcome back to Inside Your Skin podcast, where we break down what goes inside your skincare bottle that you trust the most. And to help us uncover today's truth, we have Dr. Anvika, a dermatologist who not just treats skin, but reads ingredient lists as if it's a medical chart. Yes, they have to be read like a medical chart only because that's how important they are. Hi Vaishnavi, thank you for calling me again at the La Pink podcast, and let's give some knowledge to our viewers so that they know what exactly they are putting inside their skin. We're glad to have you here, doctor. So, doc, everywhere you look, silicon-free labels can be seen. So, why did beauty industry suddenly decided to, call silicons as the bad guy? All right. So, everybody realized that today's generation needs an instant gratification whenever they're using any product. Whether the drink they're using, whether the product they are buying, whether they are applying, they need instant gratification. So silicon was that one product which was giving instant gratification in the way whenever you apply a product, gives you a smooth slide, right? And plus it makes a film onto your skin so that reflects the light in a better way and you get that feel that your skin is shining. So that's why silicon was being added. But then if it is forming a film into your skin, it's very easy for the viewers to understand it clogs your pores. So it doesn't let the real active ingredients get inside the skin. And once the skin is being suffocated, slowly it will get irritated. So that's why silicon got the bad name. And now it's out of the industry. So everywhere you find the product, silicon free. And that's a good thing. I'm really happy that silicon finally got the bad guy name. It's good. But what we are forgetting is there are so many other bad guys still hidden inside your skincare products. There are so many little micro, mini monsters hidden inside. And I think we should make the public aware of that. Because there's no point 10 years tak wo harm kare. 10 years tak silicon ne harm kara. It's now that we became silicon free. So other monsters also we should talk right now so that before they do the harm, they are out of our skincare products. So what I can understand, आप ये कह रहे हो कि ये deadly नहीं है, but neither this is harmless, right? So I'll tell you what is the good part about silicon and what is the bad part about silicon. So silicon, I told you why it was added, because it gives you smooth finish and reflection of the light. But the good part about the silicon is still whatever damage it is doing, it remains on the top layer of your skin. It is not strong enough or micro enough to get inside your skin through your pores. So silicon is bad in the sense it suffocates your skin, but still it remains above your skin. It doesn't get inside your skin. So silicon is bad, it should be out, but the other ingredients which actually get inside your skin and then damage the skin, because then it's very difficult to get them out of your skin once they have penetrated your skin. So they should be highlighted more. The industry should ban them more. So that's what we should bring the awareness about. So I have a question for you. आप बता तो रहे हो हमें कि सिलिकॉन से भी ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्किन प्रोडक्ट्स में जो अभी मैन्युफैक्चरर्स या ब्यूटी इंडस्ट्री अभी भी यूज कर रही है. So exactly कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी आप बात कर रहे हो? So आपको क्या लगता है अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री हो गया तो बस वो अब आपकी स्किन के लिए बेस्ट फ्रेंड हो गया? इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत सारे और छोटे चीजें हैं जो बहुत नेगेटिव है आपकी स्किन के लिए. शायद वो बिगर मॉन्स्टर्स है और ज्यादा हार्म करते हैं सिलिकॉन और पैराबेन से. एंड द वर्स्ट पार्ट, मैन्युफैक्चरर्स नो इट. उनको पता है कि उन्होंने वो डाल रखा है, बट पब्लिक को नहीं पता तो वो डाले जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वेयर यू एंड मी कम्स इन, जहां हम पब्लिक को अवेयर करेंगे कि सिर्फ पैराबेन या सिलिकॉन फ्री हो गया तो वो आपकी बेबी के लिए अच्छा नहीं हो गया या आपके लिए अच्छा नहीं हो गया है. There are other bigger monsters like especially microplastics. So this is a new buzzword which I really want to see कि आपका जो प्रोडक्ट है माइक्रोप्लास्टिक फ्री होना चाहिए. And microplastic is, trust me, everywhere. You name the skincare brand, you name your shampoo, your cream, your serums, it is just there. मतलब उसने इन्वेड कर रखा है. वर्स्ट पार्ट सारे मैन्युफैक्चरर्स को पता है. इवन वर्स्ट पार्ट कोई इसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा है. So let's talk about microplastic, which should be a big no.
अगर हमें माइक्रोप्लास्टिक के सीरियसनेस को समझाना हो अपने ऑडियंस को, तो हम उसे लेमन्स लैंग्वेज में किस तरीके से पहुंचा सकते हैं? ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक अभी छोड़ देते हैं। प्लास्टिक, लाइक हमें पता है प्लास्टिक अगर ग्लोब पे, धरती पे भी कहीं पे है तो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं हम लोग। वो सालों साल रहता है धरती पे, राइट? वो वहीं पे सिट करेगा, वो इरिटेट करेगा। मतलब अभी हम प्लास्टिक्स को भी हम कैसे डिस्कार्ड करें नहीं फाइंड आउट कर पाए। नाउ अब आ जाओ माइक्रोप्लास्टिक पे। अब सोचो वो प्लास्टिक तो सिर्फ धरती के ऊपर है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर उसका मिनी वर्जन माइक्रोप्लास्टिक आपकी स्किन के अंदर चला जाए और वो वहां पे बैठा हुआ है और वो वहां से डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो वो कितना खराबी कर रहा है। सो सेम थिंग, वो माइक्रोप्लास्टिक्स डाले क्यों जाते हैं आपके सारे कॉस्मेटिक्स में? हमें पता है इतना हार्मफुल है, मैन्युफैक्चरर्स को पता है, वो डाल क्यों रहे हैं? फील गुड फैक्टर, स्मूथ फिनिश देगा, तो एक आपको फिल्म बन जाएगा, तो आपको लगेगा हाइड्रेट हो गई है स्किन। डाला इसलिए जाता है। सिलिकॉन से भी ज्यादा वर्स किस लिए है? बिकॉज ये सिलिकॉन से छोटे हैं, माइक्रो हैं। सिलिकॉन तो स्किन के ऊपर रह के तबाही मचा रहा है, ये तो पोर से अंदर घुस के तबाही मचा रहे हैं। सो ये और भी ज्यादा बुरे हो गए इसलिए। सो माइक्रोप्लास्टिक आपकी स्किन के अंदर घुस गए, वहां पे स्किन को वहीं पे रहेंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, स्किन को इरिटेट करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर स्किन बैरियर डैमेज हो गया। स्किन बैरियर अगर डैमेज हो गया तो एक्जिमा, डिहाइड्रेशन, इरिटेशन ऑफ द स्किन, सब कुछ होगा। सो दैट्स हाउ। अब आपको कैसा पता लगे? चलो पता लग गया माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, किस इंटेंशन से डाला गया। अब आप क्या करें, आप और मैं क्या करें कि माइक्रोप्लास्टिक फ्री हो? सिंपल, लेबल को रीड करो। लेबर के अंदर क्या क्या आपको दिखेगा? कार्बोमर्स, पॉलीइथिलीन आपको दिखेगा, नाइलॉन दिखेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रीड आउट। मतलब अगर लेबल के ऊपर ये है माइक्रोप्लास्टिक की भरमार है, छोड़ दो उसको, सिर्फ सिलिकॉन फ्री और पैराबिन फ्री के बहकावे में मत आओ। ओके, चलो एक तो मैंने तरीका बताया कि लेबल्स को रीड कर लो। आप इसको अदर वे में भी देख सकते हो। बहुत सारे आपके आजकल फेशियल स्क्रब्स आते हैं, फेस वॉशेस स्क्रब आते हैं, बॉडी स्क्रब आते हैं। इसमें छोटे छोटे ना अलग अलग कलरफुल वो होते हैं, बीड्स होते हैं, और आपको लगता है बड़े अच्छे हैं ये। सो दे आर बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक्स। हमें तो पता है कि ये जो कॉमन ड्रग स्टोर स्क्रब्स होते हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स विजिबल तरीके से दिखते हैं, आप फिर भी फिगर आउट कर सकते हो। बट अगर आप हमारे ऑडियंस को ये बता पाओ कि और ऐसे कौन से उनके रेगुलर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं बट वो देख नहीं सकते या वो उसको फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। स्क्रब्स के अंदर और फेस वॉशेस विद स्क्रब्स के अंदर तो जो बीड्स होते हैं उसमें तो आप विजिबली देख सकते हो, बट इनविजिबल फॉर्म में तो ऑलमोस्ट सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर है, एंड सबसे ज्यादा शैम्पूज के अंदर है। तो ये सारे से तो मेनली तो आपको लेबल रीड करके ही पता लगेगा। लेकिन ये तो मैंने मैक्रो फॉर्म बता दिया। मतलब मैक्रो फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स कि जो आजकल फेस वॉशेस बहुत फेमस हो गए हैं, बॉडी स्क्रब्स बहुत फेमस हो गए हैं कलरफुल बीड्स के साथ, वो तो कंप्लीटली मतलब आउटरेजियस जिसे कहते हैं ना, इसको तो ऐसे साइड कर दो। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि सिलिकॉन बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर एक सरफेस बिल्ड कर रहा है, बट माइक्रोप्लास्टिक्स दे पॉसिबली कुड डैमेज हाउ अ स्किन बिहेव्स इन अ लॉन्ग रन, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक एक्चुअली धीरे धीरे ही डैमेज करेंगे, बिकॉज वो धीरे धीरे आपके एक बार स्किन में पेनिट्रेट कर गए, अब वो वहां विराजमान हो गए। अब वहां से आप उनको धक्का मार के निकाल नहीं सकते। अब वो उनकी स्किन भी हो गई है, वो आपकी स्किन तो थी ही, वो बैठे हुए हैं। अब आप सोचो अगर छोटे 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 प्लास्टिक्स के वो पार्टिकल्स आपकी स्किन के अंदर बैठ जाएंगे, फॉरेन बॉडी आपकी स्किन में चले गई, तो क्या होगा? धीरे धीरे ऑफकोर्स आपकी बॉडी एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन क्रिएट करती है, उसको भगाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी स्किन में एक माइक्रो वॉर शुरू हो गई है, प्लास्टिक अगेंस्ट योर इम्यून सिस्टम ट्राइंग टू थ्रो इट अवे। तो उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन, इचिंग, रैशेस वो सब होंगे। प्लस वो आपके पोर्स को भी ब्लॉक कर रही है। पोर्स को ब्लॉक करने का क्या मतलब है कि आपकी स्किन जो है ब्रीथ नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली स्किन इरिटेटेड, डल होएगी। लास्टली फिर अगर एक बार पोर्स ब्लॉक हो गए तो जो आप इतने एक्सपेंसिव सीरम्स खरीद रहे हैं जिनके एक्टिव्स हैं वो स्किन में नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि गलत चीज घुस गई, कब्जा कर लिया आपकी स्किन पे। अब जो असली चीज आनी चाहिए उसके लिए भी रास्ता नहीं है, और जो कब्जा करता है वो क्या करता है? धीरे धीरे डैमेज ही करता है। तो इरिटेशन, रैशेस, डलनेस इज बाउंड टू हैपन। बट यस, माइक्रोप्लास्टिक अभी बज़वर्ड इसलिए नहीं है बिकॉज ये स्लो एंड स्टेडी डैमेज करता है। सो दैट्स सही, अभी बच गया है नजरों से। Also, doctor, there's a common misconception among the consumers. Basically, वो सिलिकॉन को केमिकल समझते हैं और माइक्रोप्लास्टिक को सिर्फ प्लास्टिक. But what they really forget is like technically everything at the end is a chemical only. Exactly. So it's not about कि वो केमिकल है, कि वो प्लास्टिक है तो चलो न्यूट्रल होगा, सिलिकॉन तो केमिकल है तो ज्यादा खराब होगा। I mean, water is a chemical, it's H2O, right? So it's not about कि उसका वो केमिकल है कि प्लास्टिक है कि न्यूट्रल है, वो आपकी स्किन में जाकर रिएक्ट क्या कर रहा है, आपकी स्किन में क्या रिस्पॉन्स इंसाइट कर रहा है, वो एक्चुअली मेजर चीज है।
पानी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर ओवर ड्रिंक करोगे तो वो भी खराब है ना, या पानी अगर कंटामिनेटेड है तो वो भी खराब है ना. सो वो जो चीज है आपकी स्किन के लिए बनी है कि नहीं बनी है. सो डोंट थिंक इट्स प्लास्टिक सो इट्स ओके. वो ग्लोब के लिए भी ओके नहीं है, वो आपकी स्किन के लिए भी ओके नहीं है. I think it would be safe to say कि silicons are like cling film that you can possibly peel off. But microplastics, on the other hand, they are tiny splinters, that stay stuck to your skin. एग्जैक्टली वो अंदर घुस गए और वो घुस के रह गए वहीं पे, उनको निकालना फिर बहुत मुश्किल काम है. So now we are in my favorite segment of the podcast, which is Factor Cap. So basically, I'll be asking you few skincare related statements and you tell me whether it's a fact or a cap. Silicone suffocate your skin, fact or cap? It's a fact. It does suffocate your skin, but only in long run जब ये build-up हो जाए. Initially days में नहीं करेगा, but long term में करेगा. Microplastics can only be found in cheap products, fact or cap? Cap. Your luxury skincare brands are fooling you too. Remember that. Read the labels. Continuous exposure to microplastics actually makes your skin age faster, fact or cap? Of course, it's a fact. Aging के लिए और बहुत सारे दुख हैं इस लाइफ के अंदर. Please, microplastic से एटलीस्ट दूर रहो. Silicone free means safe skincare, fact or cap? बिगेस्ट कैप. इतने सारे हिडन मॉन्स्टर्स हैं. दैट्स व्हाट इतनी देर से हम लोग ज्ञान दे रहे हैं. प्लीज पॉडकास्ट को सुन लो. सिलिकॉन फ्री डजंट मेक सेफ स्किन केयर. आई थिंक डॉक्टर ये कहना सही रहेगा कि जो रियल डेंजर है वो सिर्फ वो अभी तक हिडन है. एग्जैक्टली. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू से कि इन्होंने जो छोटी छोटी चीजें थी उनको तो हाईलाइट कर दिया और अपने आप को पोर्ट्रे कर दिया इंडस्ट्री ने बड़ी स्मार्टली कि नाउ वी आर सेफ. वी आर सेफ फॉर यू, वी आर सेफ फॉर योर किड्स, वी आर सेफ फॉर योर स्किन. बट उनको भी पता है जो रियल मॉन्स्टर्स हैं वो भी हिडन है. सो दैट्स व्हाई वी एंड यू शुड टॉक अबाउट इट. एंड वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, मैन्युफैक्चरर्स विल बी फोर्स्ड टू गिव यू माइक्रोप्लास्टिक फ्री स्किन केयर ब्रांड्स प्रोडक्ट्स. So imagine as if I'm a real life consumer here sitting in front of you who's a little puzzled after listening to all of this and who basically, it acts like a panic alarm. जिससे ऐसा लगता है कि भाई अब तो मुझे कुछ भी यूज नहीं करना है and get back to not using anything. Okay, so 3 things which you should do is very first awareness आपको आ गई कि माइक्रोप्लास्टिक्स आपको फ्री प्रोडक्ट यूज करना है. गूगल में जाओ, माइक्रोप्लास्टिक की लिस्ट देख लो कि अंदर क्या क्या होते हैं. रीड द लेबल, उसमें वो नहीं होना चाहिए. तो रीड द लेबल, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज थोड़ा सा अवेयरनेस करो कि बस डोंट गो बाय ट्रेंड्स. सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन फ्री है, सेफ हो गया. सेफ का स्टैंप मार्क उस पर नहीं लगाए. बी क्लियर इन योर माइंड रिगार्डिंग दैट. थर्ड थिंग इज नेवर 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 बाय योर स्किन केयर बेस्ड ऑन डिस्काउंट मिल रहा है, 1+1 मिल रहा है, सेलिब्रिटी ने इंडोर्स कर दिया, मेरा फेवरेट इसके अंदर कलर है, मेरे फ्रेंड ने खरीदा तो मैं भी खरीद लूं. प्लीज अवेयरनेस बेस्ड आप उसको बाय करो एंड यू आर सेफ एंड रेडी टू गो फॉर द स्किन केयर, फॉर द हेल्दी स्किन केयर. And if you can remember one thing from today's episode, let it be this. Silicons may be there on the surface level, but microplastics, they are the bigger threat. Silicons, they got cancelled, but it's the microplastic that leads to real cancellation. Right. See, everything is a journey. Slowly awareness aati hai, slowly awakening aati hai when people start talking about it. Then even the brand and the manufacturers see the trend is okay. So people are aware and they have to find a substitute for it. So obviously, it's always a slow journey for anything to get eliminated. And obviously, I hope that soon we see that we are saying tata goodbye to microplastics also because they deserve to be out of our skincare routine. So it's a nice thing and it's not that अब इतना ज्यादा भी नहीं है कि लोगों को फिर भी अवेयरनेस आ गई है. लाइक फॉर एग्जाम्पल योर ब्रांड ला पिंक हैज ऑलरेडी टेकन द इनिशिएटिव और शैल आई से द फर्स्ट ones to come up with this fact that your products are microplastics free. And not only though your products are microplastics free, you are also even taking a step to create an awareness कि भैया आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो make sure कि वो microplastics free हो. So like you are the first one to start. Now slowly of course it will be because it's for a cause, it's for a purpose, so trend will set. Others will also lean in. People will start talking about it. And I just hope slowly and slowly it catches up and every brand is slowly within coming few years is microplastic free. Tata goodbye. Thank you so much, Dr. Anvika, for coming today and helping us spread awareness. And for you, if you found this video helpful, don't forget to hit that like button and do not forget to subscribe to Laping's YouTube channel. Hi everyone. So Exosome, the latest superstar of the skincare industry. So exactly exosomes hai kya? So it's a father molecule. Basically stem cells हैं, father molecule है जिससे आपकी स्किन में बहुत सारी blood vessels बनती हैं, कोलाजन एंड इलास्टिन बनता है. सो पहले हम कोलाजन सप्लीमेंट्स लेते थे, मतलब बना बनाया कोलाजन एंड प्रोडक्ट डाल रहे हैं. बट अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग टू रीजेनरेटिव मेडिसिन, यानी कि हमने स्टेम सेल फादर प्रोडक्ट डाल दिया जिससे ब्लड वेसल्स, कोलाजन एंड इलास्टिन अपने आप आपकी स्किन में बनेगा. अब नया ब्लड वेसल बनेगा तो बहुत सारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली योर स्किन विल बिकम
healthy. Exosome serum, अब आप right away start कर सकते हैं अपनी skin को exosomes देना with the La Pink latest launch, the Cica Exosome Serum. Now it's a plant-based exosome, यानी कि plants से बना है. It's very very lightweight, easy to absorb, plus it's suitable for all skin type, all skin ages, plus male and female. So start giving the health of regenerative medicine to your skin with the help of new exosomes therapy.